ସେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଡଲି ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଭାରତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ତରଫା ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେବ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ତରଫା ବିଜୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆଣିବ। ଯାହାଙ୍କ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ବନିଲା। ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଆଦରଣୀୟ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଆମ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମାନୀୟ ଜମିର ରାମଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏ 7ଟା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ମେଘମଣ୍ଡଳୀ ମେଘାଳୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଘମଣ୍ଡଳୀ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଭାରୀ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ସ୍ତରର ସମସ୍ତ ମେଘମଣ୍ଡଳୀ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ନ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରକାର ଯେମିତି ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଅଛି, ଏଥରକ 2024ରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସରକାର ହେବ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଭୋଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୋଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶତକଡ଼ା 29% ଥିଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 4% ଭୋଟ ଆମେ ପଛରେ ଥିଲେ। ଏଥରକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ତିଆରି ହୋଇଛି, ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ଜୀବିତ ଶତ୍ରୁ ଦେବା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି, ସିଏ ଆସି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଜି ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଭାରତବର୍ଷର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବାସଗୃହ ପିଇବା ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବନାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଅନେକ ଯୋଜନା ଓ ସମସ୍ତ କଥା ସମ୍ବାଦ ହୋଇପାରିଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେବେ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନକୁ ହଟାଇଥିଲେ ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିବା। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆପଣମାନେ ନେବେ, ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ନେବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ସଭାଟିକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସଭା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରହିବେ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ये जो दृश्य देखा जाए बुरी बुरी गला बिजु जनता दल कांग्रेस आउ जनता दल सब केवल बीजेपी शेष संबल केवल बीजेपी शेष शुणा आमर प्रिय नेता निवेदन करी आम पाखे आमर मार्गदर्शक भारतवर्षर दर्शन नेतृत्व भारतवर्षर आदर्श नेतृत्वर अन्यतम प्रतीक मध्यप्रदेश 4 थर मुख्यमंत्री भारतवर्ष व्यापी हत्या कर छात्र नेता युवा नेता नेतृत्व सारा बास्तवी सारा युवा क्षेत्र सारा विश्व कौन सारा नहीं विश्व से बिना भाई ये शांति नहीं पाए शत्रु विनाश नहीं पाए से क्षेत्र को आविर्भाव होती आगमन कर नेतृत्व को निवेदन करी ये माटी को ये कार्य समर्थ करने माननीय श्रीयुक्त शिवराज सिंह चौहान
मानू को मोरा नमस्कार। आज कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जतिन माहिती जी, गुरु प्रसाद सराई जी हमारे एक्स MP, हमारे जिले के सभापति सत्यव्रत महापात्रा जी, आदरणीय पवित्र मोहनदास जी, राय जी, उपेंद्र जी, प्रभात जी, संपत जी, राजकिशोर जी, बैदर मलिक जी, छवि मलिक जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मां सरला को प्रणाम करता हूँ। वो सदबुद्धि ने हमें सन्मार्ग पर चलाए और ये मां की कृपा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है। मां आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, आपकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। लेकिन ये भूमि आदि कवि सरला दास की भूमि भी है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जिन्हें महाभारत कुड़िया में यह अनुवाद करके लिखी। ये भूमि नवकृष्ण चौधरी जी की भूमि, जो उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री रहे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। समाज सेवी और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली मां मालती चौधरी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये भूमि मां सरस्वती की भूमि है। ये भूमि क्रांतिकारियों की भूमि है। ये भूमि वो है जिसने अपनी धरती से साइंटिस्ट पैदा किया। और इस धरती पर आकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज आपके बीच आया। और ये वही धरती है पारादीप, यहाँ श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ के विकास के लिए रिफाइनरी की स्थापना की। मैं अटल जी को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आया हूँ और मध्य प्रदेश भी परिवार है तो उड़ीसा भी मेरे ही परिवार है। मैंने कहा कि भोजन कार्यकर्ता के घर करेंगे। परिवार में आए तो परिवार में ही भोजन होगा। क्या भात खाया आज मैंने, आनंद आया। आज एक कद्दू का फूल की सब्जी खाई है, पखरू, पंकिन, भैया जो भी था बहुत लगा, बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। ये उड़ीसा की पवित्र संस्कृति, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की सनातन संस्कृति। अरे हर साल इच्छा होती है कि चले चलो शिवराज जगन्नाथ जी के दर्शन करने चले चलो। हमारे मध्य प्रदेश में भी सब कहते हैं जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ की भी सब पर कृपा बड़ी है। और मैं तो मामा हूँ, जब मध्य प्रदेश का हूँ तो उड़ीसा के बच्चों का भी मामूली। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सुखी हो, निरोग हो, उड़ीसा वासी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, उड़ीसा प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। लेकिन एक बात और आज कह दिया हो, नवीन बाबू के रहते हुए उड़ीसा आगे नहीं बढ़ सकता। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें सरकार ठेके पे दे दी, आउटसोर्स कर दी, आउटसोर्स। नवीन बाबू सरकार नहीं चलाते, पंजाब। ये पांडु है कि पंड्या है? राज को कर रहा भाई। नवीन बाबू तो कह देते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास बलू का कह गए सबके दाता राम। वो कुछ करते ही नहीं भाई, वो आते नहीं, जाते नहीं, देखते नहीं। और आज कहते मुझे तकलीफ, तो ब्यूरोक्रेसी में अफसरों ने, बेलगाम अफसरों ने उड़ीसा में जंगल राज स्थापित कर दिया। भ्रष्टाचार, करप्शन, चारों तरफ करप्शन, भ्रष्टाचार। आप बताओ, बिना लिए दिए किसी को कुछ मिलता है क्या? सरकार तो है यहाँ की, मुझे रास्ते में बता रहे तो डरते मिलते आया। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा चाहिए तो पहले पैसा ले आओ। सही बात है कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ के लोकल के विचार, इसमें भी करप्शन करने की कोशिश करते हैं। राशन कार्ड बनवाना हो, पैसे ले आओ, ऑर्डर दे जाओ। अरे और तो और, टॉयलेट बनवाने में भी पैसा खाते हैं। सही बात है कि नहीं? ये टॉयलेट में पैसा खाने वाले लोग ये उड़ीसा का भला नहीं कर सकते। आगंत भ्रष्टाचार में डुबो दिया नवीन बाबू आपने उड़ीसा को। ये उड़ीसा की पवित्र धरती, जिस पर भारत मां गर्व करती है, नाज करती है, आपने कहां पहुंचा दिया इसको? मेरे बहन और भाई, और भी तकलीफ होती है, दुख होता है जब हम देखते हैं कि मां, बहन और बेटियों का सम्मान यहाँ सुरक्षित नहीं। रोज दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में उड़ीसा का नाम अब अग्रणी राज्यों में आ रहा है। आपको शर्म नहीं आती? देखो, ये वो धरती है जो कभी मां, बहन और बेटी के ऊपर अन्याय सहन नहीं करती। एक द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था हिंदुस्तान के ऊपर। बहनों का अपमान किया जा रहा है और सरकार सो रही है। नवीन बाबू लेकिन नाम को बड़े करा था। अब गरीब कल्याण योजना का अनाज भेजते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बैग बनवा देते हैं नवीन बाबू और धोबी ठप्पा लगवा देते हैं। बताओ ये हो रहा है कि नहीं? मोदी जी अनाज भेज रहे हैं, नवीन बाबू बैग में भर के खुद का फोटो छाप के दिखा रहे हैं, बाहर ब्रांडिंग करके। अब ये भी पांडु करवाता है। लेना न जाना फोटो छाप। जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका लाभ देते, उनकी ब्रांडिंग ये खुद कर लेते अपने नाम से। करे कोई लेकिन नाम मेरा होता है। मध्य प्रदेश में कहावत है कि हींग लगे ना फुलकरी, रंग चढ़े चोखा। अपना क्या जा रहा है, फोटो लगा दो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा दिया है 9 साल में उड़ीसा को। कितना दिया है? एक बार जोर से बोलो, कितना दिया है? 18 लाख करोड़। ये मोदी जी भेजे, सड़कों के लिए भेजे, पीने के पानी के लिए भेजे, अलग अलग विकास के कामों के लिए भेजे। लेकिन ये नवीन बाबू की सरकार उस पैसे को ठीक से नहीं लगा रही, इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। और प्रधानमंत्री तो पैसा भेजते, काम तो यहाँ करना पड़ता है, यहाँ धरती पर काम भी नहीं होता। और उसमें भी ब्रांडिंग कर लेते हैं नवीन बाबू। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। मैं वहां से चला, भुवनेश्वर से बड़े बड़े फोटो खटाऊ नवीन बाबू, लेना देना कुछ है नहीं, फोटो लगाओ, कटआउट लगाओ, अपना नाम हो जाए बस। और उड़ीसा में जनता भी लगने लगे कि नहीं, जो कर रहे हैं यही करना है। मेरे बहन और भाइयों, अगर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो उड़ीसा हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बन जाता, इसकी संभावना है। जितना मोदी जी ने दिया है, और हमारा सौभाग्य है कि हम उस युग में पैदा हुए हैं जिस युग में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं कल था कोलकाता में, आज सवेरे बैठ जाए बैरूर मठ गया, स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन किए। जिस कक्ष में वो ध्यान करते थे उसमें भी मैं बैठा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र बोलते थे, बाद में विवेकानंद। और स्वामी जी ने 100 साल से ज्यादा होगा उस समय कहा था। तब उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त की जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। 100 साल से ज्यादा हो गए तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और तब से अब हुए हैं एक दूसरे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत को उस स्थान पर ले जा रहे हैं। वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। अरे बताओ, 2014 के पहले भारत का इतना सम्मान दुनिया में था क्या? कांग्रेस के राज में कोई भारत का सम्मान दुनिया में था क्या? मैं मुख्यमंत्री था तो मैं कई देशों में जाता था, मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई स्थान नहीं। से देश हमें डराते थे, कभी पाकिस्तान, कभी और कोई, तो भारत ऐसे झुका ही रहता है। नरेंद्र मोदी जी जब से भारत में प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया में जहाँ देखो भारत माता की जय जयकार, जय जयकार। ये मोदी जी का नेतृत्व है। दुनिया आज भारत को नकार नहीं सकती, अनदेखा नहीं कर सकती। दुनिया के जिस देश में नरेंद्र मोदी चले जाए, वो मोदी मंत्र से गुंजायमान हो जाता है। अमेरिका हो, रूस हो, जर्मनी हो, जापान हो, चीन हो। पहले चीन हमें डराता ही रहता था, लेकिन एक बार चीन के सैनिकों ने हिमाकत की भारत की सीमा में घुसने की, हमारे सैनिकों ने गर्दन तोड़ के चीनी सैनिकों की वापस चीन की सेना में कर दिया कि
वो भारत नहीं है, अभी मोदी वाला भारत, एक शक्तिशाली भारत। अभी हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में प्रणाम किया। डॉक्टर मुखर्जी कहते थे एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा, धारा 370 खत्म करो। मुझे कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त कर दी गई। पहले कहा जाता था कि मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। धारा 370 हट गई, खून की नदियां तो क्या पत्ता भी नहीं खोता। जब देखो पत्थर चलते रहते थे, अब पत्थरबाजों का पता नहीं कहां चले गए। पत्थर मत चला देना, मोदी है, गड़बड़ हो जाएगी। अयोध्या में कितने आनंद के पल हैं ये। बरसों से नारे लगा रहे थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जब हम कहते थे तो कांग्रेस के और बाकी लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन 22 जनवरी को धूमधाम के साथ अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में राम लला विराजमान। जय श्री राम। जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। 3 तलाक जैसा काला कानून समाप्त हो गया और सीएए भी जल्दी लागू होने वाला है। हमारे वो हिंदू भाई बहन, बौद्ध भाई बहन, जैन भाई बहन, सिख भाई बहन जो दूसरे देशों से प्रताड़ित होके आए, इनके लिए हिंदुस्तान के अलावा और कोई देश नहीं और कोई धरती नहीं है। कहाँ जाएंगे वो? तो मुझे बताओ, उनको भारत की नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं? जवाब देनी चाहिए कि नहीं? ये लागू होगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। उनका देश, उनकी धरती, हमारा धर्म, संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्य, सनातन संस्कृति और विकास की दृष्टि से हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तेजी से हम बढ़ रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने हम पर राज दिया, अब वो पीछे रह गए, भारत आगे निकल गया और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तेजी से आगे बढ़ रहे। मोदी है तो मुमकिन, भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन। लगातार हर क्षेत्र में अब कल्पना करके देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, भारत के बच्चे फंस गए। माता पिता चिंतित से बाहर कैसे निकलेंगे, जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मोदी जी ने फोन उठाया, एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को और दूसरा फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को। भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके आगे निकलेंगे और भारत माता की जय करके आगे बढ़ेंगे। युद्ध रोक देना। भारत के बेटा बेटी हाथ में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए निकले तो रूस ने युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध रोक दिया और भारत माता की जय कह के हमारे बच्चे साफ सुरक्षित निकल के आ गए। ये आज का भारत शानदार हाईवे का जान दिख रहा है। मेट्रो रेल के बाद बुलेट रेल चलाने का नंबर आ रहा है। घर घर में पीने का पानी नल से। लेकिन नवीन बाबू, तुम्हारे अफसर तो वो नल की पाइपलाइन भी खा गए। अभी मुझे जगन्ना बता रहे थे, गायब है, लाइन वाइन का पता नहीं। ये मेरी बहनों, घर घर पानी, नल से पानी, शुद्ध पानी। मोदी जी, भाजपा की सरकार इसके लिए पैसा दे रही है, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी। कहीं गले नहीं है, कहीं उखड़ गए और मुझे बताया कि कई नलों में जल नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ
लेके मंगल तक पहुंचता था। और दूसरी तरफ गरीब बहनों और भाइयों को 80 करोड़ भारतवासियों को, जिनमें 3.5 करोड़ उड़ीसा के मेरे भाई बहन है, फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये चमत्कार भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भाजपा की सरकार है। हर गरीब का मकान बने उसकी चिंता मोदी जी कर रहे हैं। गरीब का इलाज हो जाए उस चिंता में लगे हुए हैं। और मेरी बहनों, ये भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि अब वो बहनों को, लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगे, जिनकी कमाई ₹1,00,000 से ज्यादा हो। 4 जातियां नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। बाकी लोग देश को जात पात में बांटने में लगे हुए हैं। और राहुल बाबा को तो पता नहीं क्या हो गया। 4 जाति मोदी जी ने कहा, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवान, चारों के कल्याण में सरकार चलती है। लेकिन मुझे क्या पता चला कि किसान सम्मान निधि की सूची भी नवीन बाबू की सरकार ने भेजी नहीं पूरी। मोदी जी पैसा दे रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है? 6,000 रुपया हर साल। जब दूसरी सरकार होती है तो ये बेईमानी भी होती है। मत भेजो, मोदी जी का नाम हो जाएगा, लेकिन किसानों का तो सत्यानाश कर दिया नवीन बाबू कार्यकर्ता बहनों। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये भोली सूरत पे मत जाना, भोली सूरत का मत जाना। नवीन बाबू सच्चाई जाने और सच्चाई बताएं, अपने अपने बूथ पे बताएं। उड़ीसा अगर पिछड़ा है तो बीजेपी की सरकार के कारण, और जो उड़ीसा को अगर आगे बढ़ाना है तो उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। और आप कार्यकर्ताओं में जो उत्साह में देख रहा हूं, गांव-गांव में जय श्री राम का मंत्र गूंज रहा है। मोदी जी के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है। उससे मैं आज कहने आया हूं, संघर्ष का शंख फूंकने आया हूं, चुनाव का बिगुल बजाने आया हूं। कमर कस लो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अगर देश को आगे बढ़ाना तो तीसरी बार मोदी सरकार चाहिए। बोले चाहिए कि नहीं? मैं कहूंगा फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार तो चाहिए ही। उड़ीसा के लिए मैं कहूंगा फिर उड़ीसा के लिए मैं कहूंगा अब की बार तो आप कहिए भाजपा सरकार। अब की बार, अब की बार, अब की बार उड़ीसा में अब की बार भाजपा सरकार थी, डबल इंजन की सरकार। मोदी जी प्रधानमंत्री और यहाँ उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का। बताओ कार्यकर्ता भाइयों, चाहिए कि नहीं? जब हम ये करेंगे तब उड़ीसा का चुनाव डबल इंजन की सरकार चाहिए। और नहीं तो एक इंजन की सरकार उतना नीचे चीजें भेजती तो प्रदेश की सरकार है, केंद्र सरकार थोड़ी भेजती है। और इसलिए यहाँ भाजपा की सरकार चाहिए। इसलिए आओ, बूथ पे काम करने वाले मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, घर घर जाओ, हर द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको समझाओ, हितग्राहियों को जगाओ, सच्चाई उन्हें बताओ कि उड़ीसा में नवीन बाबू नहीं दे रहे, मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी हितग्राही संपर्क करो, चलो गांव की ओर, गांव चलो अभियान चलाओ और सबको समझाओ कि अपने गांव का और अपने क्षेत्र का विकास होना है तो भारतीय जनता पार्टी को साथ दो।
तैयार है। कार्यकर्ताओं को कमर कस के जुटना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, और 21 की 21 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बोलो जगत सिंहपुर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? तो बोलो भारत माता की। जगत सिंहपुर भी हम जीतेंगे और बाकी 20 सीटें भी जीतेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना है। लेकिन उसके साथ साथ विधानसभा भी जीतना है भाई, और इसलिए अभी से कमर कस ले। यहाँ लोकसभा विधानसभा के साथ साथ चुनाव होते हैं, इसलिए दोनों के लिए संघ फूंकना और जनता को बताना है, एजुकेट करना है कि वहां मोदी या बीजेपी की सरकार से आओ, हम तस्वीर भी बदल देंगे। उसके नया उड़ीसा, समृद्ध और विकसित उड़ीसा, जहाँ गरीबी नहीं होगी, जहाँ सबके हाथों में रोजगार होगा, जहाँ हर हाथ तो काम होगा, जहाँ बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी, जहाँ उन्नत खेती होगी, खेतों में सिंचाई होगी, जहाँ कल कारखाने लगातार लगेंगे और लगातार अपना उड़ीसा आगे बढ़ता जाएगा, जो भाजपा की सरकार कर सकती। आइए आज मेरे साथ संकल्प कीजिए कि लोकसभा में भी और विधानसभा में भी दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में हम जी जान एक कर देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव-गांव जाएंगे, सबको समझाएंगे, बूथ बेहतर बनाएंगे, सबको साथ लाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। बोलिए तैयार है? सब भाजपा को जिताने का संकल्प लेंगे, लोकसभा के साथ विधानसभा में भी जिताने का संकल्प लेंगे। तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं सब, खड़े होकर संकल्प होगा और पक्के मन से संकल्प होगा। आइए मेरे साथ दोनों हाथों पर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लीजिए, लोकसभा में भी अपना बूथ हम जिताएंगे और विधानसभा में भी अपना बूथ जिता के दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। तो आइए बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता सहित शिवराज जी को बहुत कृतज्ञता धन्यवाद समर्पित। श्रीमती प्रभाती कल्याण महोदय को निवेदन करते धन्यवाद। सम्मानास्पद मंच